Hello everyone, this is Sheshta Bhagwani from Diploma Department, and in today's lecture we are going to discuss about the thermal stresses and how when a temperature will vary आपका कैसे कैसे उसमें stress develop होता है. So whenever we increase or change the temperature, the material will increase or decrease its shape on a particular direction. So we need to calculate how much elongation occur when we increase the temperature, or if we decrease the temperature, how much material length or any direction contract. So, and if we fixed or constrain that material, then such stresses develop due to the temperature variation, and we need to calculate all these stress. So we drive some formulas so that we can calculate all these parameter. Also we are doing some numericals also. Let's start. So temperature stresses is the those stresses which develop when we increase or decrease the temperature of a material. So in a tableau, in a picture form, I will explain you how these stresses will develop. सो आपका एक मटेरियल है. मटेरियल में जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और इट विल मे बी डिक्रीज ऑल्सो. सो इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द मटेरियल विल ट्राई टू एक्सपेंड in a certain length, and if we are decreasing the temperature, the material will try to contract or shorten in the length. If there is no support or no constraint in present, अगर आपने उस मटेरियल को फिक्स करके कहीं फिक्स करके नहीं रखा है तो वो फ्रीली एक्सपेंड होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज दी टेम्परेचर. तो एक केस तो हो गया कि जब आपने कोई भी फिक्स करके मटेरियल को नहीं रखा है और आपका मटेरियल टेम्परेचर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. So we in this case we need to calculate how much elongation occur when we increase the temperature and how much contraction will occur if we decrease the temperature. And in the second case, if we constrain the material, हमने मटेरियल को constrain करके रख दिया है, then it is obvious no expansion and construction is developed in the material. अगर आपका मटेरियल फिक्स है और आप फिर भी टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो आपके मटेरियल में कोई भी इलोंगेशन डिफॉर्मेशन डेवलप नहीं होगा. एंड इस वजह से आपके मटेरियल में कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. दैट स्ट्रेसेस इज नोन एज थर्मल स्ट्रेसेस, and these thermal stresses we need to calculate. So as you can see, there is a fixed beam or fixed bar. हमने एक बार को फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया नहीं, कंस्ट्रेन करके रख दिया है at the both ends. The bar having a length of L, and there is a uniform temperature increase to T डिग्री सेल्सियस. T डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है. Now how much expansion will occur if we increase the temperature? So if we are increasing the temperature, the expansion will occur. Delta is equals to L alpha T. L is the length of bar, T is the temperature change, that how much temperature we increase from the initial value. Let's suppose if the present temperature is 20 degrees Celsius and we increase the temperature 40 degrees Celsius, so the change in the temperature is 20. So L alpha T, alpha is the thermal coefficient of a material. Every material have its own thermal coefficient value, which depends how much stresses will develop and how much elongation will occur when we increase or decrease the temperature. So we get expansion delta is equals to L alpha T, but as we know, delta is equals to PL upon AE. We derived this formula in our previous lecture,
delta is equals to PL upon AE. So PL upon L upon E is equals to PA by A is gives us stress value. So P by A को मैंने कन्वर्ट करके एक स्ट्रेस की फॉर्म में लिख दिया विच इज सिग्मा TP. T इज दी टेंसाइल रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे सिग्मा TP L by E. नाउ सिग्मा TP इज इक्वल्स टू डेल्टा E by L. यहाँ पर मैंने डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की विच इज L अल्फा T. डेल्टा मेरा यहाँ पे L अल्फा T हो गया E by L और आपका यहाँ पे L से L हमने कट कर दिया. सो हमारा नेट रिजल्ट निकल के आ गया स्ट्रेस की वैल्यू अल्फा T इंटू E. सो हमारे पास दो जो हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने थे. अगर आपका फ्री एक्सपेंशन है तो कितना एक्सपेंशन हो रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है which is calculated by the delta is equals to L alpha T. And if I want to calculate the stress, how much stress is developed when we constrain our material, then the stress is developed is equals to alpha TE, जहाँ पर अल्फा आपका थर्मल कोफिशिएंट है, टी आपका टेम्परेचर है और ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इन न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑल्सो. सो यहाँ पर हम दो स्ट्रेसेस की बात करेंगे. इट विल डिपेंड इफ वी आइदर वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्ट्रेस developed in a material is compressive nature which is represented by the sigma TP, and if we are decreasing the temperature then the stress developed in the material is in the tensile nature which is represented in the sigma TP. So let's suppose this is the case where our fixed support are not yielded. आपका जो सपोर्ट है वो यील्ड नहीं कर रहा है. दैट मीन्स अगर आपने अपने मटेरियल को कंस्ट्रेन करके रख दिया है तो उसमें जीरो डिफॉर्मेशन होगा. अगर आपने कंस्ट्रेन नहीं किया है तो उसमें फ्रीली डिफॉर्मेशन होगा. और इन दोनों केसेस में हम उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूले भी हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट ऐसा हो कि अगर आपके मटेरियल को हमने कंस्ट्रेन करके रखा है बट उसमें सम अमाउंट ऑफ आपका सपोर्ट में यील्डिंग हो गया है एंड the amount of yielding is represented by the del. हमने उसको del से रिप्रेजेंट किया कि भाई इतना mm आपका यील्ड कर गया है सपोर्ट. देन फिर भी तो हमें उसमें स्ट्रेसेस जो डेवलप हुए हैं वो निकालने पड़ेंगे. सो उसमें हम जो जितना यील्डिंग हुआ है हमारे डिफॉर्मेशन में से माइनस कर देंगे. सो सिग्मा TP इज इक्वल्स टू डेल्टा माइनस डेल E बाय L और इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा तो हमें गिवन नहीं होगा तो डेल्टा की वैल्यू हमें पता है L अल्फा T होती है, वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. सो हमारे पास तीन केसेस हो गए जिसपे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जिनपे हम बात कर सकते हैं कि आपका मटेरियल एक तो कंस्ट्रेन नहीं है, फ्री टू एक्सपेंशन है, तो हम उसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू L अल्फा T से. अगर आपका मटेरियल कंस्ट्रेन है और हमें अगर कंस्ट्रेन है तो स्ट्रेसेस तो एक्सपेंशन तो होगा ही नहीं, तो उसमें एक्सपेंशन की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे एंड स्ट्रेसेस इज कैलकुलेटेड बाय अल्फा TE. ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट है हमारा इफ आपका सपोर्ट यील्ड कर जाए तो कितने अमाउंट से वो यील्ड करेगा और तब भी हमें स्ट्रेसेस तो निकालने पड़ेंगे. तो हम वो सपोर्ट निकालेंगे सिग्मा TP इज इक्वल्स टू L अल्फा T माइनस डेल E बाय L. तो ये तीन केसेस है जो हम कैलकुलेट करेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट सेक्शन. If we apply temperature or increase the temperature on a composite section, then what will happen we discuss, and how we calculate the strain developed in this and stress developed in this. So now first we discussed what is composite section. A composite section is the section in which two materials and
we can use more than two materials also combined and make a unit material. So this section is known as composite section. आपका दो मटेरियल को हम कंबाइन करके एक मटेरियल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट सेक्शन. So as you can see in the picture, we are making steel and copper, two different materials. They have different modulus of elasticity, जिसको हमने कंबाइन करके एक कंपोजिट सेक्शन बनाया है जिसकी लेंथ है L. Now we are increasing the temperature. So आपके दोनों मटेरियल्स का यंग मॉडुलस डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन दोनों में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी डिफरेंट रहेगा. So now we are calculating del St, which is the free expansion of steel due to rise in temperature. Similarly, del St is the free expansion of copper due to rise in temperature. Here, these are the separate expansion in steel and copper. But as we composing the composite section, due to this, there is an additional extension and contraction occurs in both the sections. So additional extension in the steel to have as a composite section is delta S sigma, and contraction in copper to behave as a composite section is the delta sigma. So these are the terms which we use in composite section for calculating the effect of temperature and calculating the thermal stresses also. Now by calculating the equations, delta S is equals to delta C. Delta S the expansion in the steel bar and delta C is the contraction in the copper bar. So we know the total expansion in the steel bar is the delta St plus delta S sigma, or total contraction in the delta Ct minus delta C sigma. By solving this equation, and the ideal formula of extension is PL upon A. So we put this formula in this equation, and delta S LT minus alpha C minus alpha S. This is our equation 1. Now solving these equation, we get a relation which is known as strain relation. Epsilon S plus epsilon C is equals to T alpha C minus alpha S. Alpha C is the thermal coefficient of a copper material, and alpha S is the thermal coefficient of steel material. T is the change in temperature from initial to final time. Now epsilon has the strain developed in the steel material, and epsilon C is the strain developed in the copper material. So we discuss all these three cases when our material is not constrained, when our material is constrained, and when our material is constrained but it gets some amount of yield. So तीनों केसेस के लिए हमने कैसे उसका एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है हमने उस पर बात कर ली है, कैसे उसके स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी है और किस तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. नाउ let's start with a numerical to understand more these concepts. So this is example number 13. A railway is laid so that there is no stress in a rail at 10 degree Celsius. If rail are 30 meter long, then calculate. अब हमें अलग अलग टर्म्स दी हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना है और अलग अलग कंडीशंस पर हमें टेम्परेचर और स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी है. सो एक हमारी एक रेल है जिसको हमें अलाइन करना है कितने टेम्परेचर के लिए, 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस टेम्परेचर पे कोई भी हमारा स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा. एंड द लेंथ ऑफ ईच रेल इज 30 मीटर लॉन्ग. So first part we have to calculate the stress in rail at 60 डिग्री सेल्सियस. अगर आपके उस रेल का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और हम उसमें कोई भी एक्सपेंशंस को अलाउ नहीं करते हैं, इफ देयर इज नो अलाउंस ऑफ एक्सपेंशन, तो हमें इसमें बताना है स्ट्रेस की वैल्यू कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा.
सो जीरो एक्सपेंशन के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने अभी बात किया था. सो आपके टेम्परेचर में कितना राइज हुआ? पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज होके आपका 60 डिग्री इंक्रीज हुआ. सो द नेट चेंज इन टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस. स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ? आपका एक्सपेंशन जीरो था, स्ट्रेस डेवलप इन दी रेल इज अल्फा टी ई. अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट व्हिच इज 12 into 10 की पावर -6. 50 is the change in temperature. एंड क्योंकि जो ये रेल है आपका स्टील का है, सो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 into 10 की पावर 5. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 20 मेगा पास्कल. स्ट्रेस डेवलप होगा जब आपका टेम्परेचर राइज कर जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस तक. Now our second part is the stress in a rail at 60 degree Celsius if there is an expansion allowance of 10 mm per rail. कि अब हमने थोड़ा बहुत एक्सपेंशन अलाउ कर दिया कि अगर इस रेल में टेम्परेचर के साथ कुछ एक्सपेंशन हो रहा है तो वो 10 mm तक हम अलाउ कर सकते हैं. देन आपका कितना स्ट्रेसेस उसमें डेवलप होगा. सो यू कैन सी सिग्मा TP इंटू एल बाई ई इज इक्वल्स टू. तो इससे हम इस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना एक्सपेंशन होगा. सो यहाँ पे L हमें दे रखा है 30 मीटर. सो वी कन्वर्ट 30 मीटर इंटू mm. अल्फा वी हैव टू गिवन एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 50 है आपका और -10. 10 यहाँ पर आपने इतना एक्सपेंशन अलाउ किया है. लास्ट वाले में अगर आप देखेंगे, अगर आपको एक्सपेंशन निकालना है तो एल अल्फा टी हम यूज करते हैं, बट दिस इज दी नेट एक्सपेंशन और हम अलाउ कितना कर रहे हैं? 10 mm हम अलाउ कर रहे हैं, तो वो हमने 10 mm इसमें माइनस कर दिया. तो अगर हम 10 mm को अलाउ नहीं करते तो टोटल 18 mm का हमारा एक्सपेंशन हो रहा था ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, बट 10 mm हमने अलाउ कर दिया तो हमारा कितना निकल के आया? 8 mm. Now our third part is the expansion allowance if the stress in the rail is to be zero. अब हमें बताना है कि कितना एक्सपेंशन हम अलाउ कर देंगे, यानी हमारा प्रीवियस टर्म्स इक्वेशंस को जस्ट उल्टा कर दिया. द एक्सपेंशन अलाउंस इफ द स्ट्रेस इन द रेल इज जीरो. स्ट्रेस को हमने जीरो कर दिया यानी फ्री टू एक्सपेंशन है व्हेन टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस. सो पार्ट नंबर थर्ड में आपका स्ट्रेस जीरो है तो हम कितना एक्सपेंशन अलाउ करेंगे? दैट इज द एल अल्फा टी. सारी वैल्यूज हमें गिवन है और हमने कैलकुलेट कर लिया कि हम एक्सपेंशन अलाउ करेंगे 18 mm when there is no stress. Now our fourth part is the maximum temperature to have no stress in the rail if the expansion allowance is 13 mm rail. हमें Hello everyone, this is Cheshta Bhagwani from Diploma Department, and in our previous video we were discussed about the manufacturing process of cement, how the cement is manufactured by the different stages, and how we calculate the strength of cement and the process, all about the process we discussed in our previous lecture. Now in our today's lecture we are going to discuss about the हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, कि आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट में कैसा होता है और उसकी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो हीट ऑफ हाइड्रेशन में पार्ट लेते हैं, ज़्यादा पार्ट लेते हैं, और उनकी रेट कैसे डिक्रीज करती है. इन सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे. दूसरा हम बात करेंगे अबाउट दी सेकेंडरी हाइड्रेशन. सेकेंडरी हाइड्रेशन कैसे होता है आपका, and the types of cement, what are the main types of Portland cement जो कि हम बनाते हैं, कौन कौन से materials उसमें vary करते हैं. So these are the topics we are going to discuss in our today's lecture. So let's start with the heat of hydration and the strength of cement. So basically heat of hydration term we introduce
in between when the cement and the water react between them, and the reaction which is created is the exothermic reaction. And the total amount of heat, 90% of heat is generated within the 6 month of the mixing. After the mixing 6 month तक आपकी 90% heat generate हो जाती है, and rest of the amount is slowly increases due to C2S. So now the heat of hydration can be reduced by the reducing the quantity of C3S and C3H. As you can see in the table, the large amount of heat of hydration is created by the C3A and the C3S. So C3A is created 867 joule per gram and C3S is created 500. So if we talking about the secondary hydration आपका जो लीड करता है वो है कि आपकी जब आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है तो आपका लाइम फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ CaOH होल ट्वाइस, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3S एंड C2S. इस लाइम की वजह से आपका केमिकल अटैक आपकी सीमेंट पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड उसमें लीचिंग, कॉरिजन, क्रैक्स, एक्सपेंशन जैसे इफेक्ट्स आपके कंक्रीट में आने लगते हैं, विच लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट मटेरियल. सो इसके लिए हम सर्टेन टाइप्स ऑफ सिलिशियस मटेरियल्स रिएक्ट करवाते हैं इस लाइम से, जिसकी वजह से आपका वापस वही मटेरियल C3S2H3 फॉर्म हो जाता है, विच लीड्स आवर कंक्रीट for prevent to the disintegration of concrete. Similarly, different grade of concrete. So higher grade of concrete, which is higher than 33 grades, are produced by the final grinding and by increasing the C3S. अगर आप अपने सीमेंट मटेरियल को ज़्यादा फाइन कर देंगे, ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो इंक्रीज हो जाएगी. और सिमिलरली बाय इंक्रीजिंग दी C3S अमाउंट, C3S अमाउंट को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो अर्ली एज में आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी. Similarly, if cement attaining high early strength are produced by increasing the ratio of C3S to C2S and the finance, this leads high 28 days strength. आपकी 28 days की जो strength होती है वो increase हो जाएगी by increasing the ratio of C3S to C2S. सिमिलरली जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम कैलकुलेट करते हैं मोटार की, सीमेंट की, हम उसमें आपका क्यूब्स बनाते हैं एंड आफ्टर 28 days ऑफ क्यूरिंग हम उस क्यूब्स की टेस्टिंग करते हैं एंड उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं. और वी कैन से क्रशिंग स्ट्रेंथ. The compressive strength of concrete of grade 43 after 28 days of curing is expected to be 43. आप 43 मेगापास्कल उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसकी ग्रेड जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज 43 grade of concrete. Similarly, 33 grades of concrete also represent the 33 megapascal compressive strength of that cement material. The long-term strength of high and low-grade cement is the same. Now the types of Portland cement. Cement with different chemical composition when hydrated exhibit different properties. आपके डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस में कि अगर आपने सिलिका का अमाउंट बढ़ा दिया, लाइम का अमाउंट बढ़ा दिया, आयरन ऑक्साइड का कंपाउंड बढ़ा दिया, तो वो आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देती है. एंड सो बाय दैट we are classified the different types of cement, Portland cement. It is possible to select different proportions of raw materials for making different types of cement having different properties. If you want to making a low heat cement, जो आपकी cement बहुत ही कम heat को generate करे, so you need to decrease the amount of C3S. Special types of cement can be produced with the special uses. कि अगर आपको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो आप उसके लिए अलग सीमेंट बना सकते हैं, और सी एरियाज में कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पे हाई सल्फर अटैक होता है तो वहाँ के लिए आप अलग से सीमेंट बना सकते हैं. Commercially, different types of Portland cements are available in the market as per your requirement.
cements have been produced to ensure good resistance and durability of concrete under different environment. The composition of cement should be such that it can be resist the load, shrinkage, creep, permeability, and the weather, etc. So these are the main types of cement which we use. The first one is ordinary cement, second is rapid hardening cement, third is ultra high early strength Portland cement, low heat cement, modified cement, sulfate resisting Portland cement, Portland blast furnace cement, low heat Portland cement, white Portland cement, and Portland pozzolanic cement. So one by one we discuss all these 10 types of cement. So ordinary Portland cement. So ordinary Portland cement have three grades, which is 33, 43, and 53. The number 33, 43, and 53 represent the grade of cement after 28 days of compressive strength of cement. जब हम उसके मोटार बनाते हैं, मोटार का क्यूब्स बनाते हैं और 28 डेज तक क्यूरिंग करने के बाद जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है उस सीमेंट की, which is 33, 43 and 53. These are the grades of cement of OPC cement, ordinary Portland cement. जनरली हम इस सीमेंट को यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया पे जहाँ पर नो एक्सपोजर ऑफ सल्फर, सल्फर का कोई भी एक्सपोजर नहीं होता, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट. रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है, अगर आप पोर्टलैंड सीमेंट को ओपीसी सीमेंट को ही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाना चाहते हैं, सो आपको ओपीसी सीमेंट को थोड़ा सा फाइन ग्राइंडिंग करना होगा और स्लाइटली C2S को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करना होगा और C2S को डिक्रीज करना होगा. इससे होगा क्या, C2S आपका बहुत लेट स्ट्रेंथ देता है, तो अगर आप उसको कम कर देंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने C3S का अमाउंट बढ़ा दिया तो आपको अर्ली स्ट्रेंथ मिल जाएगी. सो यहाँ पर हम ये रिलेट कर सकते हैं कि एक दिन की जो स्ट्रेंथ होती है आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, विच इज इक्वल टू 3 days ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी सीमेंट. 3 दिन की जो ओपीसी सीमेंट की आपकी स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है एक दिन की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विद द सेम वाटर कंटेंट रेशियो. आपका वाटर कंटेंट रेशियो आपका सेम है उस केस में. The main advantage of rapid hardening cement is that shuttering may be removed much earlier, thus the saving considerable time and expenses. अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज कर रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, तो आप बहुत जल्दी समय में आपका शटरिंग को हटा सकते हैं. जो भी आप सपोर्ट्स लगाते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं. सो इट विल सेव योर टाइम एंड द एक्सपेंसेस ऑल्सो. और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो सीमेंट सीसी रोड्स बनाते हैं उसमें भी हम इस टाइप के सीमेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दी पॉश एरिया आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते फॉर द कंस्ट्रक्शन, इसलिए आपको कम टाइम में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होता है. सो यू कैन इजीली यूज दीज टाइप्स ऑफ सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट. Now if we discuss low heat cement, so low heat cement आपका पोर्टलैंड सीमेंट में आप क्या चेंजेस करेंगे जिससे आपका लो हीट सीमेंट बन जाए. तो आप स्लाइटली इंक्रीज कर दीजिए C2S का अमाउंट और आपका C3S और C3A को डिक्रीज कर दीजिए. यू कैन सी फ्रॉम द टेबल कि आपका C3A और C3S ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देता है, तो अगर आप दीज कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देंगे तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होगा, तो आपकी लो हीट सीमेंट बन जाएगी. बट आपको उस सीमेंट की स्ट्रेंथ भी चाहिए, सो यू नीड टू इंक्रीज दी C2S अमाउंट. सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो लो हीट सीमेंट है आपका कितना अमाउंट ऑफ हीट देता है. आफ्टर 7 days आपका 65 कैलोरीज पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होता और 28 डेज के लिए 75 कैलोरीज पर ग्राम होता है. जो आपकी लो हीट सीमेंट है जनरली वो आप मैसिव कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, लाइक रिटेनिंग वॉल्स, डैम, etc.
It has low rate of gain of strength, but the ultimate strength is practically same as the OPC सीमेंट. अगर आप इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे लोहित सीमेंट की, तो वो सेम होती है ओपीसी सीमेंट के बराबर. If we are talking about पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, तो यहाँ पे जो आपका ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपकी कोल बेस्ड प्लांट होते हैं जहाँ पर आपके जो भट्टी होती है उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है उनको हम यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट के साथ यूज करते हैं और उसकी इंटरग्राइंडिंग करते हैं. तो दिस सीमेंट इज मेड बाय इंटरग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स एंड granulated blast slag furnace. This proportion of slags being not less than 25% और not more than 65%. जो यहाँ पर आप slag यूज करते हैं उसका proportion 25 से कम नहीं होना चाहिए और 65% से ज्यादा नहीं होना चाहिए by the weight of cement. So the slag should be granulated blast slag of high lime content, which is produced by rapid quenching of molten slag obtained during the manufacturing of pig iron in the blast furnace. Generally, the blast furnace slag cement is found to gain high strength more slower than OPC cement. The Portland blast furnace lamp can be used in the cold weather also. It has fairly high sulfur resistance and rendering it suitable for use in the environment exposed to the sulfur. ओपीसी सीमेंट को हम सल्फर एक्सपोजर एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर सकते, बट पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को हम वहां पे यूज कर सकते हैं इजीली. इट कैन बी यूज फॉर ऑल पर्पस for which OPC cement can be used. Now, Portland Pozzolana cement material.